ఏంటి ఓపెన్ అవ్వట్లేదు ఎక్సెల్ ఫైల్స్ వి 500 ఇక్కడ. Good morning, all of you. Robi sir, are you hear my voice? Yes. Okay, sir. Can I start? Yes, sir. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Welcome to today Visual Basic for Application classes. This morning, once again, I have welcome to all of my online. आज का सुबह साल सभी को बीबी ऑनलाइन क्लासेस पर मैं स्वागत कर थैंक यू फॉर इस क्लास में ज्वाइन कर बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अनाउंसमेंट है, आप लोग प्लीज कृपया क्लास को अटेंड करिए। सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर सम और प्रॉपर मींस प्रिपरेशन या ब्रश का सब जॉइन करते से बैठे रहते हैं। हाँ, so please switch off, or if you are not in a proper way, please switch off your video. आप या तो कृपया आप वीडियो को बंद करिए। Please respect this class and your co-students also. मैं आपसे सबसे अनुरोध कर रहा हूं, if you are not able to sit in a proper manner to attend this class, कृपया आप वीडियो बंद करिए या ज्वाइन मत करिए, कोई दिक्कत नहीं। So many people are getting to join this class. बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरेस्ट स्टूडेंट्स वो इंतजार में हैं, उसको मौका नहीं मिल रहा है रूम में एंट्री करने के लिए। प्लीज so with a proper dress, with a proper preparation, you please attend this class, because both the boys and girls are attending this lesson class, so honor them. Okay, so now friends, in last from this classes are conducted from April 6th onwards. अप्रैल 6 तारीख से मैं लगातार ये क्लासेस ले रहा हूँ VBA प्रोग्रामिंग। मैं आशा रखता हूँ सबको थोड़ा फंडामेंटल समझ में आ गया होगा, VBA के बारे में पता चल गया होगा। ठीक है, अभी तक क्या करते थे, हर जगह पर जो बच्चे कोपा करके entered into the CSA after finishing their COPA course, sometimes they get little bit things to clear their end examinations. The teachers can create given a calculator in a VBA. That is enough. लोगों ने कैलकुलेटर क्रिएट करना जानते हैं, कोपा किया है, बाकी का साथ एक्सेल सीट पर थ्रू कोडिंग प्रोग्रामिंग का साथ जो भी अभी तक समझा है वो चीज किया नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, यू प्लीज प्रैक्टिस एट योर हैंड। आप कृपया मेहरबानी से, अगर आपके पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, तो प्रैक्टिस करिए। आप कुछ अलग लिखने की जरूरत नहीं। जब मैं स्क्रीन पर प्रोग्राम्स दिखाते समय पर उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी करिए, नहीं तो मोबाइल में से फोटो खींचिए, फिर उसको ही रीटाइप करिए। आप अभी भी किसी को सपोज हैविंग वेरी आइडिया, they can know how to save the file in MS Excel means VBA के अंदर आप सेव नहीं कर पा रहे हो, या तो पता नहीं चला है, जो सेविंग करते रहे तो आप, लेकिन वो सेव नहीं हो पा रहा है, कैसे सेव करना आपको पता नहीं, ऐसे कोई है तो आप मतलब पूछ सकते। हेलो गायत्री, व्हाट इज योर डाउट? हेलो,
गायत्री, आर यू लिसन माय वॉइस? गायत्री, आपको सुना? आपने हैंड राइज किया है, क्या डाउट है आपका? हेलो, सौम्या, 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 you have a doubt? You people are raising the hands. Archana Yadav, have a doubt, then only you please raise your hand. अगर आपका पास कोई डाउट है, पूछना है, तब तो आप कृपया मेहरबान से हैंड राइज कीजिए. So I am asking if those are raise their hands. So one is suppose for example Soumya cannot respond. Archana Yadav. Okay, leave it. We will enter into the today means BBA class. So friends, look at here. I want to give you some overall means review of this BBA. We are able to means how to do some experiments, practicals in the BBA. I think you are seeing my screen. I want to take another screen, new sheet. Look at here, friends. Friends, please look at here. So today, actually, our aim is we want to discuss about the procedures. So before entering into the procedure, you please try to what I am telling. आज का प्रवेश करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ. I want to recap. First of all, basic language का बारे में मैंने. Then after that, basic. Then after that, .NET. Then Visual Basic for applications. Inbuilt MS Office. There is no need to install any separate software like Visual Basic. अगर आपने MS Office इंस्टॉल किया आपका कंप्यूटर के अंदर, तो MS Office के अंदर ही Visual Basic for applications, ये सॉफ्टवेयर का सहायता से हम क्या कर सकते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट सबके अंदर एक्सेस के साथ इंप्लीमेंट कर सकते हो आप. लेकिन वन ऑफ द मच मोर पॉपुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज विजुअल बेसिक फॉर एक्सेल. एक्सेल का साथ ज्यादा मींस एप्लीकेशंस के साथ हम डेवलप कर सकते हैं. फिर इसमें हम डिस्कस करते समय पर मैंने आपको ये बताया, सारे में कैनॉट गिव एनी डेफिनेशंस, आई वांट टू कैनॉट टेक द टाइम किलिंग. बस रिकैपिंग, लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया आपने. वेरिएबल्स का मतलब क्या बताया, टू क्रिएशन ऑफ वेरिएबल्स. वेरिएबल क्या करेगा, टू स्टोर डाटा, बस इतना बताया. टू स्टोर डाटा इन मेमोरी, मेमोरी टेम्पररी स्टोर करेगा ये, बस. क्रिएशन, डिम स्टेटमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट वेरिएबल्स. अब और क्या डिस्कस किया हमने, फिर कॉन्स्टेंट्स के बारे में डिस्कस किया. वेरिएबल्स क्या करते हैं, प्रोग्राम को रन करते समय पर अलग अलग वैल्यूज को रीड कर सकते हैं. यू कैन रीड
randomly different values at the time of execute your coding. Variables data memory के अंदर main memory में store करते रहते हैं. Constants are having fixed means fixed values. Never change the entire change their values at the time of प्रोग्राम के अंदर वैल्यू फिक्स है. जैसे while loop में i is less than or equal to 10, the 10 is the constant. अगर i is less than or equal to n, ये तो लास्ट क्लास में भी मैंने समझाया आपको. एक कंडीशन अप्लाई करते समय पर while i is less than or is equal to 10, then what happen? Here i is equal to variable, counter variable बढ़ता रहेगा, घटेगा बढ़ेगा. लेकिन जो 10 है constant, ये फिक्स है. ओके, देन आफ्टर दैट मैंने बताया कीवर्ड्स. ये रिजर्व वर्ड्स है. सर स्क्रीन डिस्प्ले नहीं हो रहा है. हाँ सर, मशीन में स्क्रीन नहीं, स्क्रीन डिस्प्ले नहीं हो रहा है. ओके, so I am typing in my MS Excel. I think it is appeared. Okay. Now I am sharing, sir. Please look at. ये दिखाई दे रहा है सर रोबिन सर? नहीं, ब्लैक स्क्रीन आ रहा है अभी भी. ओके सर. बाकी सब फाइल्स को बंद करके सिर्फ वही खोल दीजिए सर. ओके सर, सब कहेंगे वैसे ये कर देते हैं. बाकी सारे क्लोज है सर. ओके, now it is appeared sir. ये चूज कर किसने रहा? नहीं सर. सारे क्लोज कर देना. सारे एक्सेल फाइल्स क्लोज. ईमेल पर क्लोज చేస్తున్నారు. Sir, now it is open. अभी Okay friends, sorry for the late means some technical issue. Okay, so we are covered all these things, but today so one person is asked, sir please tell me the matrix multiplication by using multi-dimensional array. हमने तो मैट्रिक्स एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह किया है हमने लास्ट क्लास में. तो अभी मैट्रिक्स एडिशन बताने से पहले एक चीज, सॉरी, मल्टीप्लिकेशन procedure. We are already doing the procedure work in VBA. So procedure is nothing but so continuous sequence statements which are do a particular task. एक प्रत्येक काम करने के लिए sequentially line by line लिखा गया कोडिंग को ही कहते हैं हम procedure. So what is the advantage of the procedure? फायदा है, एक procedure आपने लिखा है, जब मर्जी तब आप कॉल कर सकते हो. You can divide your program into number of blocks or schedules by using procedure का concept है. हम सपोज अपना प्रोजेक्ट को नहीं तो लेंथी प्रोग्राम को सब ब्लॉक वाइज डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है. सो बट प्रोसीजर्स नॉट रिटर्न एनी वैल्यू. प्रोसीजर्स वैल्यू को मींस रिटर्न जिस जगह से है उस जगह पर वैल्यू को कैरी नहीं करते. सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस. ओके, सो नाउ फ्रेंड्स, सो अगर सिंपल प्रोसीजर मींस सब प्रोसीजर से हमसे जो कोड डेवलपर पर गया मैंने विजुअल बेसिक पर, सपोज देखिए ये प्राइवेट सब बटन मींस वी आर राइटिंग दिस कोड बाय यूजिंग कमांड बटन मींस एक इवेंट. इफ यू वांट डायरेक्ट प्रोग्राम
Then you first of sub sub use it to write sub means procedure. एक प्रोग्राम लिखने के लिए विदाउट एनी if you want to write coding in a visual basic editor time we can use this sub. Sub is the keyword, sub procedure, it will indicate the sub procedure is a keyword, cannot use आपको पता है. तो ये आगे any name that is called as a procedure name within closing bracket, then after that ये प्रोसीजर इधर से समाप्त हो गया है, ये बात बताने के लिए एंड सब लिखते हैं. So if you want procedure some coding use the sub sub reservoir, it will indicate user want to write job. Then after that you can write here statements VBA statements 1 statement 2 like that. Then number of insert, write any number of statements. Then after that you can mention and sub. I want to increase the font size here, friends, please look at here. No problem, don't feel any boredness and otherwise you can learn. So look at here, सब प्रोसीजर्स का बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. सो प्रोसीजर if you want to write any programming, then that time in VBA one of the keyword is there sub. Sub will indicate the sub procedure. So sub का आगे क्या करना है, हम जो भी नाम देते हैं सब procedure name माना जाता है. So then every procedure will start with opening and closing parenthesis brackets. Some example sub sub procedure sample sample, then opening bracket and closing bracket. Then if you want to display your name, okay, then we are discussed already about the MSC box message box. Then after that my name is, आप ये अपना नाम लिखिए. याशनी पोज लिखा. Then simply and sub. This is one simple procedure. When the controller will reach it here, then it will enter into this sub procedure. What are the lines are you are enter, the lines are executed by line. तब मैं सिर्फ एक सिंपल छोटे से प्रोसीजर के बारे में समझाना. using message box, name is as we suppose trade, ESA, simple message box. Institute, okay. So friends, here I want to one control C. If you want to write, look at here, this one Visual Basic Editor. Then if you want to implement any worksheet, then this workbook. Suppose if you want to see the result in this worksheet, sheet 1. Okay. So now we do one thing. We're adding new sheet, sheet 4. So developer, Visual Basic, sheet 4 is there here, sheet 7. Then, but I am displaying the result on the message box only. I cannot use the Excel sheet. No problem. So I copied here. क्या किया मैंने, सब स्पेस सैंपल मैसेज बॉक्स के अंदर कोटेशन में लिखा ये चीज. अब मैं ये रन कर सकती हूँ. देखिए, माय नेम इज एशनी, माय ट्रेड इज CSC, माय इंस्टीट्यूट इज
ओके, अब देखिए सब एडिशन ऑफ टू नंबर्स, ऐड लेगा मैं टिम A, B, C, थ्री नंबर, देन इन दो वेरिएबल्स को रीड करना है, A इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स एंड फर्स्ट नंबर। ये सिंपल कोडिंग्स, वी आर नॉट यूजिंग एवरी कोडिंग, हम लिख नहीं रहे। B, enter the second, C is equal to, चलिए वैल्यू फंक्शन स्टार्टिंग में भी यूज करते, वैल्यू ऑफ A, वैल्यू ऑफ B, टेक्स्ट बॉक्स में वो दे रहा है। ओके, सपोज प्रिंट करना है, तो अगर टेक्स्ट भी कोडिंग तंत्र के साथ से आप प्रिंट करना चाहते हो तो फिर क्या कर सकते हैं, RNG रेंज डबल कोटेशन के अंदर A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू A1 में मैं ये लिखना चाहता हूँ स्ट्रिंग डायरेक्टली FIRST फर्स्ट नंबर, इवन फर्स्ट नंबर, ताकि पता होने के लिए हमने क्या नंबर दिया है। मैसेज बॉक्स में तो प्रिंट कर सकते हैं, अभी शीट में उसी फर्स्ट मींस रो, सेकंड बी में या तो सी में प्रिंट, बी में प्रिंट करना नंबर, तो यही रेंज कमेंट को कॉलम, वो नंबर को कैसे प्रिंट कर, डायरेक्ट वेरिएबल नेम लिखना है, ये ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा ये स्मॉल टू कैपिटल और टू। इस तरह मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, मैं सेकंड नंबर को ये 2 पर टेक्स्ट प्रिंट करना चाहता हूं मैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करेंगे अभी, एक मिनट ये इसको कंप्लीट करने के बाद। फिर सेकंड नंबर को मैं B2 में डिस्प्ले कर रहा हूं मैं, सम A3 में ये लिखना चाहते हैं एडिशन, देन ये है B3 में। अगर इंडिविजुअली अगर इसको सपोज हम रन करते हैं, you get here, enter the first number 50, enter the second number 100। अब एक्सेल सीट पर जाके देखना है, ये देखिए फर्स्ट नंबर 50, सेकंड नंबर 100, सम प्रिंट किया है 150, ये सम एडिशन आना चाहिए A3 पर, हम देखते हैं। फ्रेंड्स प्लीज एनीबॉडी वांट टू लर्न द कोडिंग, सिंपल कोडिंग, अगर प्रोग्राम लिखने के लिए, इसलिए प्रैक्टिकल क्लास कंडक्ट कर रहे हैं हम। सो मैं ये देखिए अभी आपको दिखाने के लिए साइज बढ़ा दिया है, सारे कोडिंग का द्वारा हम लिख रहे हैं, आज से कुछ लिखा नहीं। अब ये सम क्यों नहीं आया, दैट इज कॉल्ड एज डिबगिंग। आप जहाँ देखते हैं सम कहाँ लिखना था, A3, तो A3 पर क्या लिखा हमने, A2 है, इसलिए इसको ओवरराइट कर रहा है, A3 पर लिखना एडिशन, फिर B3 में बगल में C, रिजल्ट प्रिंट कर देते, ठीक है। फिर रन कर रहा हूं मैं, बटन तो नहीं है, ये प्रोसीजर है। सो देखिए ये मीन्स जो रन टैब दिखा दे रहा है सिंबल, से आप रन कर सकते। तो F5 फर्स्ट नंबर इस बार चेंज कर सकते हैं हम, 200, 150, फर्स्ट नंबर 200, सेकंड का रहेगा वो नहीं, कुछ भी नहीं अभी स्क्रीन पर, देयर इज नो इंफॉर्मेशन इज देयर ऑन द एमएस एक्सेल शीट, मेरे शीट पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं प्रोग्राम रन करने के वजह से सारी इंफॉर्मेशन एक्सेल शीट पर लेकर जा रहा हूं थ्रू दिस सब प्रोसीजर। enter the first number, you can give any number, enter the second number, go and see the result, first number, second number, third number, लिखना है। ये चीज बहुत दिन से मैं समझा रहा हूँ, फिर टाइम वेस्ट कमेंट डॉट वैल्यू के कारण से असाइनमेंट ऑपरेटर द्वारा इज इक्वल टू राइट साइड विल कैरिंग टू द लेफ्ट साइड। फर्स्ट नंबर लिखने के लिए कहा, रेंज A1 लोकेशन का
ट्रांसफर किया। अब बात अब इधर से भी इस प्रोग्राम को रन कॉल करने के लिए सिर्फ सब प्रोसीजर नाम ही लिखना है। देखते हैं कि माय नेम इज जैस्मी ट्रेड इंस्टीट्यूट। अब देखिए पूछने लगा, सपोज हियर आई वांट टू गिव सम अनदर वैल्यू 700 300। एक्सेल सीट पर गया मैं, फर्स्ट नंबर 700, सेकंड नंबर इज थर्ड, ये चेंज हो गया, पहले नंबर्स नहीं है ये। लेकिन सो व्हाट आई एम टेलिंग हियर एज ए टीचर में ये सम कम अंदर अति साधारण सी एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। आप अपना जो बल्क प्रोग्राम को इफ यू वांट टू डिवाइड सम नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, एक एक छोटे छोटे मॉड्यूल से आप डिवाइड करके फिर उसको एक्सेस करना चाहते हैं, रन करना चाहते हैं, तो उस कोडिंग को हम एक प्रोसीजर्स के अंदर लिखने की वजह से उस टास्क को आप फुलफिल कर सकते हैं। पूरा प्रोग्राम को कंटिन्यूअसली लिखने से वजह से क्या होता है, ये नंबर ऑफ लाइंस विल बी इंक्रीज। एक इसलिए प्रोजेक्ट वर्क के अंदर क्या है, प्रोजेक्ट टीम लीडर and team members, then every members they can suppose they in a project work some of the teams, more than one team, 2-3 team members will be working. So one team will design the forms, second team will design the coding, third team will attending a data compiling, like that they can divide the task. बैक एंड में वो लोगों एक एक टीम एक एक काम करते रहते हैं ताकि बाद में सबको कंक्लूड कर देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब सारे एंटायर प्रोजेक्ट एक ही कोडिंग के अंदर लिखने की वजह से क्या होता है, प्रोग्राम लेंथ बढ़ने की वजह से डीबगिंग यानी एरर चेकिंग वगैरह करते समय पर इट विल टेक टाइम। फिर कंसंट्रेशन मतलब एक ब्लॉक वाइज स्टडी करने में भी क्या होता है, सारी चीज एक ही प्रोग्राम के अंदर लिखने की वजह से इन फ्यूचर में मतलब को मेमोरी वेरिएबल्स याद रखने में, या तो इसको रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन अप्लाई करते समय पर, कैलकुलेशंस वगैरह अप्लाई करते समय पर, एंटायर प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ वेरिएबल संख्या बढ़ेगा, फिर याद रखने में दिक्कत हो जाएगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू द टास्क वी आर सबडिवाइडेड टू मींस दिस प्रोग्राम इनटू प्रोसीजर्स। एडिशन के लिए मैंने लिखा इस प्रोग्राम को मैं क्या करता हूं, सब्ट्रैक्शन, कंट्रोल सी, लुक एट हियर, या तो फ्रेंड्स प्लीज लुक एट हियर सब। अब मैं सब प्रोसीजर सब्ट्रैक्शन के लिए SUB नहीं लिख सकते, सब इज द रिजर्व वर्ड, SUBT सब्ट्रैक्ट, मैं तो सिंपली सब्ट्रैक्ट लिखा, ऑटोमेटिकली इट कैन ऐड द ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट एंड sub will indicate the end of the procedure. So I want to make it this one, control C, then paste here. So subtraction purpose what can you here, I want to means change the operator, अरिथमेटिक ऑपरेटर, प्लस के जगह पर माइनस लिखा है। सो यार देखिए एडिशन का जगह पर सब्ट्रैक्शन, रिजल्ट तो सी का अंदर स्टोर किया हमने, लेकिन जब सब्ट्रैक्शन को कॉल करते समय पर इट कैन रीड द अनदर वैल्यूज, एक ही वैल्यूज का साथ सारे करना तो इसी के अंदर सारे ऑपरेटर्स को आप पहले के अंदर रख सकते हो। लेकिन मैं सब्ट्रैक्ट नाम से एक दूसरी प्रोग्राम लिखा है सब प्रोसीजर के अंदर, तो इस सब प्रोसीजर को मैं रन करने के लिए मेरे मेन प्रोग्राम के अंदर सिर्फ सब प्रोसीजर का नाम लिखने की वजह से दैट इज कॉल्ड एज कॉलिंग। फर्स्ट एडिशन को मैं कॉल कर रहा हूं, फिर SUBTRECT subtract. Okay, so then what happened, first it will try to execute the line by line। ये तो सबको पता है प्रोसीजर या तो प्रोग्राम के अंदर कंट्रोलर क्या करेगा, सपोज अब इस कर्सर सैंपल सब प्रोसीजर के अंदर रखते समय पर सैंपल के अंदर जो फर्स्ट लाइन मैसेज बॉक्स माय नेम इज सो एंड सो, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, देन आफ्टर दैट add okay, because in sample dim means add, so it can check whether it is a variable in this entire workbook, means editor will exit from this and try to find out whether is any is available or not, ढूंढेगा, फिर अगर मिल गया तो फिर उसको करेगा। So what happened here, the sub procedure the controller will exit from the, it will try to identify where that particular sub procedure is whether available or not, ये है नहीं है, अगर है तो उस controller will enter into that particular sub procedure block, अगर है मिल गया है उसको
फिर उस सब प्रोसेस के अंदर कंट्रोलर प्रवेश करके सब प्रोसेस के अंदर जो भी लिखा है हमने लाइंस 1 by 1 सीरियली एग्जीक्यूट करेगा। एंड सब होने के बाद कंट्रोलर अगेन मेन प्रोग्राम, जिस जगह से हमने प्रोसीजर्स को कॉल किया है उस जगह पर चला जाता है। अगर अभी देखते हैं हम सब्ट्रैक्शन हो गया, फिर लास्ट में सपोज है एक मैसेज लिखना चाहता हूं आपको समझ में आने के लिए, ऐसे होता नहीं होता देखने के लिए। देखिए मैसेज बॉक्स के क्या है, थैंक यू फॉर विजिट, नहीं तो थैंक यू फॉर लर्निंग VBA, नहीं तो प्रोग्रामिंग इज VBA फन, कुछ भी लिख सकते हो। We want to observe that the procedures are executed line by line. ये प्रोसीजर्स लाइन बाय लाइन मींस एक तरह से दूसरे मतलब एग्जीक्यूट कर रहा है नहीं कर रहा है, ये चीज हम देखने के लिए फ्रेंड्स वंस अगेन आई वांट टू गिव द अनाउंसमेंट, आई एम एट प्रेजेंट वर्किंग इन सैंपल सब प्रोसेस में, सैंपल कोडिंग के अंदर हूं, कर्सर इधर रखा है। तो इससे क्या पता चलता है PPA को ये कंपाइलर इंटरप्रेट क्या पता चलता है, यूजर वांट टू रन दिस सैंपल, they are written more than one sub procedures, add subtract, like this you can write any number of sub procedures, but which procedure will be executed in the first time, their current position means currently wherever means which procedure you are working means प्रस्तुत समय पर किस सब प्रोसीजर के अंदर आप काम कर रहे हो उस प्रोसीजर से एग्जीक्यूशन का काम शुरू करेगा। तो मैं अभी मतलब ये प्रस्तुत समय पर करंटली आई एम वर्किंग इन सैंपल सब प्रोसीजर, सैंपल प्रोसीजर के अंदर रह रहा हूं मैं, स्टार्टिंग से एंडिंग बीच में कहीं भी रखे कर्सर। So then you can click on this run tab. My name is, so मैसेज बॉक्स के अंदर लिखा हमने तो वो चीज डिस्प्ले करने लगा ये। So my name is SCCSA Chennai. Then after that enter the first number. प्रोसीजर को कॉल किया इन्होंने, so first number, second number, then it will display the here result 150 and 150 200. Then again it called the another procedure subtraction. अभी हमसे मांग रहा है फर्स्ट नंबर, सेकंड फर्स्ट नंबर 500, सेकंड नंबर 300, then it can change here first number 500, second number और subtraction 300। इसी की जगह पर हमने देखिए फिर थर्ड मैसेज बॉक्स को इंप्लीमेंट किया इन्होंने, थैंक यू फॉर लर्निंग VBA। So look at here, I want to show this program in MS Excel sheet. Okay, so copy Excel, we are working in this sheet and pasted here. Okay, so this is the main program, sub procedure. I want to write a coding without any command button means event buttons or some activate tools or form tools, बिना टूल से बिना कंट्रोल से मैं कोडिंग लिख रहा हूँ, तो उस कोडिंग को सब प्रोसीजर द्वारा लिखते हैं हम VBA के अंदर। सो ये कोडिंग प्रोग्रामिंग कहाँ लिखना सर जी, सो डेवलपर पर जाके विजुअल बेसिक एडिटर पर जाइए, इसमें आप अपना कोडिंग लिख सकते हो प्रोग्राम। तो आप if you want to write a program without any button or control, simply first of all you can use the sub will indicate the sub procedure। बिना बटन से प्रोग्राम लिखना चाहता हूं तो विजुअल बेसिक एडिटर के अंदर sub सब नाम से कीवर्ड को यूज करके फिर आगे XYZ PQR ABC कुछ भी नाम दे सकते हैं, फिर ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, देन ऑटोमेटिकली विजुअल बेसिक ऐड करेगा एंड सब, यानी सब प्रोसीजर नेम और एंड सब के बीच में जो भी लाइंस आप लिखना चाहते हो लाइन बाय लिख सकते हो, इट विल एक्सक्यूट द वन बाय वन। प्रोसीजर के अंदर सब प्रोसीजर नेम एंड एंड सब के बीच में जितना भी लाइंस लिखते हैं हम वन बाय वन एग्जीक्यूट करेगा रन करते समय पर। मैसेज बॉक्स सबको टेक्स्ट को एक बॉक्स के अंदर डिस्प्ले करेगा, माय नेम इज यास्मी, ये एक टेक्स्ट बॉक्स में प्रिंट करेगा। फिर नेक्स्ट मैसेज बॉक्स में माय नेम ट्रेड CSC, फिर नेक्स्ट बॉक्स मैसेज बॉक्स NSTI चैनल। 3 लाइंस कंप्लीट करने के बाद ऐड क्या है ये सब प्रोसीजर मींस प्रोसीजर, what I'm telling here. So whenever the controller will reach this line, this one is the sub procedure, controller exit from this coding means this main sub procedure से बाहर आने के बाद फिर आगे पीछे add नाम से कोई और दूसरी सब प्रोसीजर है क्या तो ढूंढेगा, फिर इसको एग्जीक्यूशन काम शुरू करता है। नीचे इधर देखिए ये तो तीनों करने के बाद कंट्रोलर क्या करेगा, हमने नीचे लिखा ऐड
प्रोसीजर एडिशन के लिए, और हमने अंदर डिक्लेयर किया डिम एबीसी 3 इंटीजर वेरिएबल्स। फर्स्ट ए को रीड कर रहे हैं इनपुट बॉक्स से, एंड बी को इनपुट बॉक्स से रीड कर रहे हैं हम, फिर सी इज इक्वल टू दोनों को जोड़ रहे हैं, वैल्यू ऑफ ए प्लस वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू इज वन ऑफ द विजुअल बेसिक फंक्शन, इट विल कन्वर्ट द टेक्स्ट इक्विवेलेंट टू न्यूमेरिक वैल्यू। सो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इनपुट बॉक्स में हम वैल्यू दे रहे हैं, इस वैल्यू को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करेगा। सो दोनों को कन्वर्ट करके प्लस ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर का सहायता से ए बी दोनों ऑपरेंड्स है, ये और बी क्या है बाबू इधर ऑपरेंड्स। ये सारी चीज मैंने बताया, आज अचानक से मतलब फास्टली नहीं समझा रहा हूं मैं, एट दिस मोमेंट फॉर क्लैरिटी पर्पस ए बी और कॉल्ड ऑपरेंड्स। जो प्लस सिंबल है, प्लस is called operator. So here the plus which type of operator? प्लस ऑपरेटर्स के बारे में पढ़िए, मैंने समझाया है। तो प्लस एक ऑपरेटर है, एक ऑपरेटर प्लस क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर ऐड करेगा, एडिशन ऑपरेशन। सो इसलिए फर्स्ट ऑपरेटर ऑपरेंड ए का अंदर वैल्यू बी का साथ जोड़ के, फिर इक्वल टू ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर लेफ्ट साइड दोनों वैल्यू बाद रिजल्ट को राइट साइड या नहीं सॉरी राइट साइड वैल्यू कंप्लीट होने के बाद लेफ्ट साइड सी का अंदर ट्रांसफर करेगा। सो फर्स्ट वैल्यू ए 50 बी 150, सो 50 प्लस 150 200 विल बी पास ऑन टू द सी। तो उस वैल्यूज को हम प्रिंट कर रहे हैं इधर। फिर कंट्रोलर देन ऐड होने के बाद सबट्रैक्ट, फिर क्या करेगा असली में, ये वैल्यू प्रिंट करने के बाद अगेन द कंट्रोलर विल रिटर्न बैक गो टू द मेन प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम से आया है उस जगह पर चले जाके फिर नेक्स्ट लाइन क्या लिखा, सबट्रैक्ट। तो इस प्रोसीजर को क्या करेगा, फिर इस लूप में प्रोग्राम से बाहर आके वो ढूंढेगा सब प्रोसीजर है क्या है, हमने लिखा है, तो ये सब प्रोसीजर के पास जाके फिर कंट्रोलर अंदर प्रवेश करेगा, उसका अंदर भी हमने जो लिखा है तो उसको भी लाइन बाय लाइन एज इजली एग्जीक्यूट करेगा। तो इसको एग्जीक्यूट करने के बाद अगेन द कंट्रोलर विल गो टू द बिगिनिंग ऑफ द मींस सब प्रोसीजर। तो स्टार्टिंग कहां से आया ये कर्सर, ये है सब प्रोसीजर मींस सबट्रैक्ट के बारे में लिखा हमने। फिर वो कंप्लीट होने के बाद इट विल कम टू द मेन प्रोग्राम, सबट्रैक्ट किया, फिर सबट्रैक्ट का आगे जो लिखा मैसेज बॉक्स थैंक यू फॉर लर्निंग VBA, इसीलिए बाद में ये मैसेज बॉक्स का साथ प्रिंट कर रहा है। तो मैं स्क्रीन हटा दिया फ्रेंड्स, आप इसको प्रिंट करना है सॉरी स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपना मोबाइल से, या फोटो खींचना है तो फोटो खींचिए। दिस इज द सब प्रोसीजर SUB सैंपल 3 मैसेज सब अगेन मैसेज बॉक्स, दिस इज माय मेन प्रोग्राम। फिर SUB ऐड एडिशन के लिए सब प्रोसीजर लिखा मैंने, दिस वन। देन आफ्टर दैट आप लोगों के सामने लिखा है सबट्रैक्ट के लिए दूसरा है ये, ठीक है, फोटो खींचिए। अब मैं रन कर रहा हूँ, बटन तो है नहीं, तो डेवलपर विजुअल बेसिक आई विल एंटर कोडिंग विंडो विजुअल बेसिक एडिट पुटिंग द कर्सर इन द मेन सब प्रोग्राम के अंदर रखा मैं। अगर यह F5 फंक्शन की F5 से भी रन कर सकते हो, मैंने फंक्शन की दबाया कीबोर्ड पर F5 यूज इट टू एग्जीक्यूट रन द प्रोग्राम, ठीक है। VBA कोडिंग को शॉर्टकट ये है F5 की से भी रन कर सकते हो या नहीं, VBA टूल्स के अंदर ग्रीन बटन। चलिए, माय नेम इज SP, माय ट्रेड इज CSA, माय इंस्टीट्यूट नेम इज NST चेन्नई, एंटर द फर्स्ट नंबर, ये हमसे पूछने लगेगा फर्स्ट टर्न, क्योंकि एडिशन सब प्रोसीजर शुरू हो गया है। तो फर्स्ट नंबर यू कैन गिव एनी नंबर 750, एंटर सेकंड नंबर 150, देखिए एडिशन सब फर्स्ट नंबर 150 एडिशन 9, वो कंप्लीट करने के प्रोग्राम में आ गया, लेकिन साइड का नीचे सबट्रैक्शन लिखा, सबट्रैक्शन प्रोसीजर एग्जीक्यूट कर रहा है फर्स्ट नंबर। सो फर्स्ट नंबर आई वांट टू गिव 850, सेकंड नंबर 150। अब देखिए फर्स्ट नंबर सबट्रैक्शन 700, वो भी काम कंप्लीट करने क्या किया, मेन प्रोसीजर फिर सबट्रैक्शन का हमने लिखा है
क्या लिखा है मैसेज बॉक्स के अंदर? थैंक यू फॉर लर्निंग VBA, वही डिस्प्ले किया उन्होंने, थैंक यू फॉर लर्निंग VBA। दिस इज द प्रोसीजर टू इम्प्लीमेंट द प्रोसीजर्स इन विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक के अंदर प्रोसीजर्स को इंप्लीमेंट करने का तरीका ये है। So please try to understand, if you want to write coding without any buttons, without any events, if you want to write a coding, a program with the help of Visual Basic Editor, Visual Basic Editor पर जाके डायरेक्टली प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो कृपया मेहरबानी से SUB सब कीवर्ड को काम में लीजिए। सब is used to create a sub procedure, write some coding without any buttons or events controls। Then सबका आगे XYZ, PQR, ABC कुछ भी लिखिए तो अपना यूजर कन्वीनियंट के लिए सपोज देखिए SUB XYZ मैं लिख रहा हूँ, सो ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट ये अपना तरफ से जोड़ देगा, एंड सब भी अपना आप ऐड करेगा। तो इसका मतलब ये है प्रोग्रामर को, कंप्यूटर ऑपरेटर को, यूजर को सब और एंड सब के बीच में जो भी काम करना चाहता है टास्क लाइन बाय लाइन हम लिख सकते हैं इसके अंदर। तो फिर रन करिए, वन बाय वन सीक्वेंसली एग्जीक्यूट करेगा। सो मेरे कहने का मतलब, अब हमने सैंपल नाम से एक सब प्रोसीजर लिखा, 3 मैसेज बॉक्स के अंदर, सेकंड में ट्रेड, थर्ड मैसेज बॉक्स से डाटा प्रिंट किया, तीनों मैसेज बॉक्स अलग अलग कंप्लीट होने के बाद ऐड नॉट ए कमेंट, इट इज वन ऑफ द सब कंट्रोलर इज मेन सब प्रोसेस से नीचे आके ऐड सब मिला है इसको, कंट्रोलर विल एंटर इनटू दिस ब्लॉक, देन इट विल लाइन बाय लाइन सपोज कोडिंग लिखा हमने, वन एग्जीक्यूट करेगा, जब एंड के बाद कंट्रोलर go back to the main sub procedure and तो next लिखा subtract, subtract is not variable name, so this नहीं है, not as result word भी नहीं है, तो इनको मीनिंग, जब मीनिंग पता नहीं है तो इस लूप सैंपल सब बाहर आके ढूंढने का काम शुरू कर। subtract नाम से कोई सब प्रोसीजर है नहीं है, मिल गया है subtract नाम से सब प्रोसीजर, तो कंट्रोलर subtract के अंदर प्रवेश लाइन बाय लाइन जो भी कमेंट्स लिखा हमने, it will try to implement, execute this subtract procedure after reaches the end, at the time of reaching the end sub, again controller will go to the main sub जहां से आया उस जगह पर जाके फिर नेक्स्ट जो लिखा है मैसेज बॉक्स थैंक यू फॉर लर्निंग VBA, सो वो कंप्लीट कर देते हैं। तो आई थिंक यू पीपल सर अंडरस्टैंड, मैं आशा रखता हूँ आपको समझ में आया होगा। रोबिन सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ 5 मिनट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अभी डिस्कस करेंगे हम। अगेन आई वांट टू रन दिस प्रोग्राम, फ्रेंड्स प्लीज लुक एट हियर, मेरे भी समाचार नहीं है, कोडिंग तो है आपके लिए, मैंने दिखाने के लिए तो लेकर आया, दूर कर रहा हूँ मैं। अब मैं विजुअल बेसिक एडिटर के अंदर गया है, ये रहा मेरा मेन प्रोग्राम सैंपल, कर्सर इधर रखा हूं मैं, देखिए ये ग्रीन बटन रन बटन पर क्लिक किया है, माय नेम इज, क्योंकि मैसेज बॉक्स के अंदर लिखा माय नेम इज, जैसे ये आ गया है। फिर नेक्स्ट मैसेज बॉक्स देखिए मैं सामने दिखा रहा हूँ आपको, मैसेज माय ट्रेड इज सीएसए बॉक्स के अंदर डिस्प्ले कर रहा, माय ट्रेड इज सीएसए, मतलब ये लाइन कंट्रोलर नेक्स्ट लाइन पर जाएगा, माय इंस्टीट्यूट एनएसटी चेन्नई, जब मैं ओके पर क्लिक कर रहा हूँ क्रॉस बटन, my institute name is NST Chennai means line by line it will be executed। मैं यही समझाना चाहता हूँ आपको, एक एक लाइन वन बाय वन एग्जीक्यूट कर रहा है। फिर अगर ये my institute name NST Chennai कंप्लीट होने के बाद अगर ओके क्लिक किया मैंने, तो मैसेज बॉक्स तो है नहीं, ऐड, तो ऐड मींस सब प्रोसीजर के अंदर चले जाएगा, ये कॉलिंग ऑफ प्रोसीजर, सब प्रोसीजर कॉलिंग है ये। फिर देखिए सब प्रोसीजर एडिशन के अंदर गया, 3 वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया उन्होंने, पूछने लगा इनपुट बॉक्स में एंटर फर्स्ट नंबर, सो फर्स्ट नंबर में दे रहा हूं 1050, कुछ भी दे दीजिए। सेकेंड नंबर, सो आई एम गिविंग हियर 450, देखिए ये फर्स्ट दोनों रीड करके सम कर दिए उन्होंने, ये वैल्यूज प्रिंट कर दिए हैं। फिर प्रिंट करने के बाद मेन प्रोग्राम में चले गए, सबट्रैक्ट प्रोसीजर को कॉल किया उन्होंने सबट्रैक्शन करने के लिए, सो सबट्रैक्शन पर्पस सपोज 500 फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर जो 500 सबट्रैक्शन 345 होने के बाद मेन प्रोग्राम में गया, प्रोग्राम में क्या लिखा मैसेज बॉक्स थैंक यू फॉर लर्निंग कंप्लीट किया उन्होंने। फिर ये है एमएस एक्सेल, तो दिस वन ऐड हमने लिखा है, तो मतलब क्या है सब प्रोसीजर कॉलिंग, इसको कहते हैं वो सी प्रोसीजर को कॉल करने के लिए क्या करना है, प्रोसीजर नाम लिखना है। Suppose if you are not mention that particular procedure, error message, प्रोसीजर तो डिफाइन किया नहीं आपने
प्रोसीजर को कॉल कर रहे हो तो okay. So now one or two students are given WhatsApp to request, sir please tell me the matrix multiplication. So friends, here in matrix multiplication it is not an ordinary program. In matrix addition subtraction जैसे इसको काम में नहीं ले सकते हम. So matrix multiplication का अंदर एक फंडा है. क्या है? The rows are multiplied by the columns. That is the whose are math background, those people sir understand. 1 2 3 4 2 matrix 2. लास्ट टाइम एडिशन के लिए मैंने समझाया 3 4 correspond 1 plus 1 2 2 plus 2 4 3 plus 3. फास्टली समझा प्लीज. देखिए 4 corresponding वैल्यू 4, ये है एडिशन. इसी तरह सब्ट्रैक्शन, लेकिन मल्टी है फर्स्ट रो, जो मैंने अभी रो मार्किंग किया हूं इधर रेड कलर से, will be multiplied by the column, first column. So that is the main break principles of this. आपको दिखाई नहीं देगा. देखिए, this is the row. First row will be multiplied into the first column. Again the same row will be multiplied into the next column. अगर एक मैट्रिक्स का दूसरा मैट्रिक्स में बहुत सारे कॉलम्स हैं तो कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करेगा या नहीं. इस मल्टीप्लिकेशन में क्या कर, नेक्स्ट स्टेप में into 2 1 into ये करेगा प्लस अगेन 1 into, अगर आपको दिखाना चाहिए देखिए 1 into 1 देन प्लस 1 into 1 2 into 3. ये है फर्स्ट एलिमेंट में एक सिंगल कोटेशन ऐसा कुछ लिखा होगा. ये है फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट एलिमेंट मींस नेक्स्ट हियर 1 into 1 1 एलिमेंट, देन ये हो गया. नेक्स्ट क्या है, इसको साथ इसके मल्टीप्लाई सेम 1 into 2 प्लस, डोंट मेक एनी कंफ्यूजन, 1 into 2 सेकंड, फिर 2 into 4 2 into 4. देयर इज नो दूसरे मैट्रिक्स में. फिर ये रो का साथ सेकंड रो, सेकंड रो में क्या, फर्स्ट एलिमेंट 3 into ये 3 प्लस 4 सॉरी 3 into 1 तो फर्स्ट कॉलम 3 into 1 4 into 3 4 3. सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो में फर्स्ट 3 सेकंड कॉलम में 2 प्लस सेकंड रो में सेकंड कॉलम 4 into सेकंड कॉलम में 4. अब देखिए फर्स्ट कॉलम मार्क्स एलिमेंट सेम है, 1 वही 1 आ जाएगा. द 3 ये 2 है 2 सेकंड में भी 4 है तो 4. तो रोस आर मल्टीप्लाई द कॉलम में क्या होगा 1 into 1 प्लस 2 into 3 इधर 1 into 2 2 प्लस 4 8. तो 3 into 1 3 3 1 3 4 into 3 12. और इसमें क्या होगा 2 into 3 2 3 6 4 4 16 10. अब नेक्स्ट फाइनल मैट्रिक्स में क्या 1 plus 6 7 2 plus 8 10 3 plus 12 15 16 plus 16 6 plus 16 22. फ्रेंड्स अब इधर सिंपल 2 लूप से नहीं हो पाएगा काम. ये कि इस मल्टीप्लिकेशन के लिए 3 लूप्स को काम में लेते हैं. फॉर i is equal to 1 2 2 ये है रोज के लिए. फॉर a is equal to 1 2 2. लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए तीसरी लूप को भी काम में लेते हैं हम. फॉर k is equal to 1 2 2 क्योंकि रोज को कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करना है. सो मेरे पास जो मैट्रिक्स है a कामा b कामा c, तो मेरे पास पड़ा हुआ है तो कैसे डिक्लेयर करता हूं मैं dim a of 2 by 2 कामा b of 2 by 2 कामा c of 2 by 2 as integer. तो होगा फिर देन आफ्टर दैट लूप वेरिएबल्स के लिए क्या करना है डिक्लेयर करना पड़ेगा.
तो कितना काम में लिया है हमने, i कामा j कामा k एज इंटीजर। अब मैट्रिक्स को रीड करने के लिए क्या करते हैं हम, रीडिंग पर्पस, फॉर i इज इक्वल टू 1 to 2, फॉर j इज इक्वल टू 1 to 2, रीडिंग रोस एंड कॉलम्स, डोंट मेक एनी कंफ्यूज, किसके अंदर रीड करना है, ये मैट्रिक्स को रीड कर रहा हूं, a ऑफ i कामा j इज इक्वल टू इनपुट फिर समय नहीं है, ये मैट्रिक्स है तो फर्स्ट मैट्रिक्स एलिमेंट्स, ब्रैकेट क्लोज। अब ये फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ, का सामने लिख रहा है, फिर j इंटरनल नेक्स्ट j नेक्स्ट है नेक्स्ट i, ये तो सब है। तो फ्रेंड्स रवि सर, यस सर। सर प्लीज हमें हम्बल रिक्वेस्ट, आज के लिए सिर्फ 5 मिनट टाइम दे दीजिए, ये टास्क कंप्लीट कर देता हूँ। तो इतने स्टूडेंट्स ने मैसेज किया है, ओके सर 5 मिनट के अंदर वाइंड अप कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स लुक एट हियर, सो हियर व्हाट हैपेंड, इस तरह हमने फर्स्ट मैट्रिक्स को रीड करने के बाद कॉपी पेस्ट करते हैं, ये तो सबको पता है। सो कॉपी पेस्ट करते समय पर ए का जगह पर सिर्फ हम बी को लिखते हैं, सेकेंड मैट्रिक्स को रीड ए का जगह पर बी लिखना, प्रोसीजर सेम। अब दो ए पता चल गया हमें, बी भी पता चल गया है, एंटर, इसमें क्या लिखते हैं, बी मैट्रिक्स एलिमेंट्स। अब इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन के लिए एक चीज, तो फॉर i is equal to 1 to 2, for j is equal to 1 to 2, for k is equal to 1 to 2, then internal coding is c of i comma j is equal to value of c of i comma j, ऐड करना है, एडिशन कर, ये मतलब सम इज इक्वल टू सम प्लस i लिखते हैं ना, इसी तरह। अब असली मैट्रिक्स एलिमेंट्स क्या है, वैल्यू ऑफ ये ऑफ i कॉमा हम लिखते हैं इधर k, ये ध्यान रखना, प्लस वैल्यू ऑफ b ऑफ k कॉमा j, ये है मेन लॉजिक मल्टीप्लिकेशन का। अब फर्स्ट इंटरनल लूप क्या, k, नेक्स्ट k, नेक्स्ट इंटरनल लूप क्या, j, फिर नेक्स्ट i, दिस इज multiplication. So here friends, I think we have that one. Was removed, no problem. So अभी हम एक बटन लेंगे, एक बटन का साथ डायरेक्टली इसको कॉपी कर देता हूँ। Look at here friends, developer, then insert a comment button लिया है, डबल क्लिक, कैप्शन में गया, MEATRA, if you want to need C then see it here। तो अब हम क्या करना है, ये अंदर लेकर जाना, कंट्रोल C कंट्रोल V, मैट्रिक्स को एलिमेंट किया मैंने, तीनों को रीड, अगर मैं प्रिंट करना तो you can C of I comma j is equal to value of C of I comma j, another bracket is required here, value of में भी एक्सेल में प्लीज जिन्होंने कॉपी किया है कृपया मेहरबानी से इस फंक्शन में क्या करना है, देखिए इधर एक ब्रैकेट वैल्यू के लिए, इधर भी एक ब्रैकेट, value one open bracket and matrix में another open bracket, then two closing brackets are needed, so we want to enter here। तो कंप्लीट कर दिया भाई। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होने के बाद अब मैट्रिक्स को प्रिंट करने के लिए फर्स्ट, चलिए ये ए को ले लीजिए, ये मैट्रिक्स को हम प्रिंट कर रहे हैं, तो सिर्फ कॉपी पेस्ट, विकेट हियर, फॉर i इक्वल टू 1 to 2, फॉर j इक्वल टू 1 to 2 प्रिंट करने, तो सेल्स i comma j इज डॉट वैल्यू इक्वल टू a of i comma j, फर्स्ट मैट्रिक्स नो प्रॉब्लम प्रिंट कर दिया हमने, इसको कॉपी कर देंगे। सेकंड मैट्रिक्स को कहाँ प्रिंट करना है, a b को कहाँ में लिया, c को जोड़ देंगे काली, 4d में प्रिंट कर देंगे, 4 को प्रिंट करना है तो j प्लस
3 प्रिंट कर देगा ये। आगे फिर इसको प्रिंट करना है, ए बी फर्स्ट मैट्रिक्स, सी डी ई सेकेंड मैट्रिक्स, एफ खाली, जी पर देखिए फर्स्ट टू ए में फर्स्ट ए बी सी खाली, सी मैट्रिक्स एफ खाली, जी क्या 1 2 3 4 5 6 7 7 पर प्रिंट करना है तो क्या करना है, j प्लस 6 1 है तो होगा 7। ये देखिए ये है मल्टीप्लिकेशन। अब लेकिन मैट्रिक्स चेंज करना पड़ेगा, सी को प्रिंट कर रहे हैं हम, ये है बी को प्रिंट कर रहे हैं। डोंट मेक एनी कंफ्यूज, आई वांट टू रन हियर मल्टीप्लिकेशन। ओके एक्सेल सीट पर गया मैं, डिजाइन मोड हटा दिया, एंटर ए मैट्रिक्स एलिमेंट 1 2 3 4, एंटर बी मैट्रिक्स एलिमेंट 1 2 3 4। अब रिजल्ट हमने ये रहा 1 2 3 4 1 2 3 4 7 9 11 13 नहीं 7 10 11 22 आना चाहिए। तो हमने कहा देखते हैं रुकिए, C of I comma j is equal to value of C of I comma j, value of I comma k plus P of k comma j 1 2 3 I of I comma सॉरी I comma k, ठीक हाँ मल्टीप्लीकेशन, सॉरी मैंने प्लस यूज किया ना इधर, हाँ तो सर और कितना टाइम लगेगा? sir okay sir, then I can continue the next class, no problem. So friends, so we received the call from NIMI department, so this is the procedure. I can check this internal what we have done, there's some mistake, but it gives the like this 1 2 3 1 2 3 जो हमने दिया है, so can give you the answer 7 10 15 22 आना चाहिए। so no problem, next class morning I will correct it here। one sir Robi sir 1 minute internal check करते हैं, day of C of I comma j is equal to C of I comma j plus C of I comma k to k comma j। सॉरी प्लस यूज कर दिया हमने, तो देखते हैं। I want to remove here these values, run 1 2 3 4 first matrix 1 2 3 4 second matrix, look at here हमने इधर प्लस सिंबल यूज किया है, मल्टीप्लिकेशन करना था हमें, तो मैट्रिक्स को ऐड तो नहीं करना है। सो प्लीज वी आर गेट दैट सिंपल डन ए मिस्टेक, वी आर यूजिंग द ऑपरेटर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर्पस स्टार सिंबल, so in place of plus you can add the star only। look at here मैन्युअली मैंने कैलकुलेट करके दिखाया आपको 7 10 15 22, so मल्टीप्लिकेशन का द्वारा आ गया है 7 10 15 22। so this is the procedure program to multiply two matrix, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट को प्रिंट करने के लिए यही तरीका है। आप प्लीज कृपया मेहरबानी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टाइम इज ओवर। थैंक यू रोबिन सर, आपने सब बहुत मदद किया है मेरे स्टूडेंट्स का, लास्ट टाइम इन्होंने डाउट्स पूछा है ये। फ्रेंड्स प्लीज मेक इट फोटो शॉर्टकट, फर्स्ट मैट्रिक्स रीडिंग सेकंड मैट्रिक्स रीडिंग डायरेक्टली मैंने कैलकुलेशन किया है क्या मल्टीप्लिकेशन पोर्शन। अब एक पता है आप लोगों का कैसे प्रिंट करना है, ये है प्रिंट करने के लिए, ये को प्रिंट किया तो इसमें एक जगह पर पी ये वैल्यू प्रिंट किया मैंने ए मैट्रिक्स, इसी को क्या है सिर्फ कॉलम वैल्यू चेंज किया, एक जगह पर बी बताया, सो कॉलम वैल्यू क्या है ए बी, फर्स्ट 1 2 छोड़ के गैप के लिए +3 किया 4, ए बी सी डी, डी फोर्थ वैल्यू, जे वैल्यू 1 है तो
J1+3 4 डी में प्रिंट करता रहता है। ये डी में प्रिंट करने के लिए आई वैल्यू 1 है तो क्या 1 2 3 4 5 6 जोड़ना है इस पर आने के लिए, इसलिए वही किया इधर सी में J+6। Okay friends, don't make any confusion, try to understand. We will meet once again tomorrow at the same time. कल का सेम समय पर हम देखेंगे, मिलेंगे हम। Thank you. Okay, bye.